بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلق قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی جو ویو ہے وہ کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں اب لاک ڈاؤن کے بھی خدشات ہیں. بڑا مشکل سے ہم نے اس کووڈ سے جان چھڑائی تھی, بہت مشکل سے ہم ایک نارمل زندگی کی طرف آئے تھے, پر اب جو ہے دوبارہ سے ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ obvious سی بات ہے اس سے سفر کر رہے ہیں. بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں اور سیویرٹی آف دا ڈیزیز از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. لائک جو ویریئنٹ اب نیو آیا ہے یہ کافی زیادہ ڈیزاسٹرس ہے اینڈ آپ کی ہیلتھ پہ بہت برے طریقے سے اثر انداز بھی ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کویشچن ان دس ویو اینڈ کووڈ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں. تو ہم ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا واقعی ہمارے جو سوسائٹی میں نورمس اینڈ مسکنسیپشن ہے کیا یہ ٹھیک ہے, کیا ہم جن چیزوں کے سوالات ہم جاننا چاہ رہے ہوتے جوابات وہ ہمیں ٹھیک مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. سو اس پوری سچویشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے میں نے دو ماہر ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا ہے. ان سے ہم کووڈ کے بارے میں معلوم کریں گے کہ جو فورتھ ویو ہے اس میں کیا ڈیزاسٹرس ہے. ساتھ ساتھ میں جو ہے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتی چلوں کہ پریگننٹ خواتین جو ہیں ان کے لیے بڑا ایشو ہے کہ وہ ویکسینیشن سے بڑا گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ ویکسینیشن کروانے سے ان کی پریگننسی پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا. تو CDC کی ویب سائٹ پر آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو ساری انفارمیشن ایزیلی مل جائے گی ریگارڈنگ دا پریگننسی اور ریگارڈنگ دا ویکسینیشن ان پریگننسی ایز ویل. میرے ساتھ اس پروگرام میں ماہر ڈاکٹرس نے مجھے جوائن کیا ہے. ایک ڈاکٹر محمد اویس, ہی از اے پروفیسر ان ضیاءالدین ہاسپٹل, اینڈ دوسری ڈاکٹر میرے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ رسول ہے. شی از اے FRCOG اینڈ شی از اے گائناکالوجسٹ. ہم ان سے ریگارڈنگ کووڈ پوچھیں گے اور ویکسینیشن کے بارے میں پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان مائی پروگرام. تھینک یو سر, سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی ریگارڈنگ دا کووڈ ویکسینیشن کے اور کیسز کے بارے میں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے بارے میں آپ ذرا بتائیے گا کہ دس از مور سیویئر دین پریویس ون یا اس وہی فائنڈنگس ہیں, اس میں تو سمٹمس بھی ڈفرینٹ دکھائی دے رہے ہیں. ڈاکٹر فلک, یہ بہت ہاٹ کویشچن ہے کہ جون 2021 سے ایک نیا ویریئنٹ کی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا, جو بیسیکلی ہم آج تک 3 ویریئنٹ کو دیکھتے تھے کہ الفا تھا, بیٹا تھا اور گاما تھا. ناؤ دیر از اے ڈیلٹا ویریئنٹ جو کہ انڈین ویریئنٹ تھا. شروع ہوا تھا الفا سے جو کہ UK تھا, دین ساؤتھ افریقہ بیٹا تھا, دین برازیل گاما, اور اب جو ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے. یوزلی میں کہتے تھے کہ جو COVID-19 ڈیزیز ہے اس میں شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے اور آکسیجن سیچوریشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اف اٹ از مور دین 94% ان روم ٹیمپریچر اٹس فائن. وہ COVID-19 چپ چاپ ہو کے چلا بھی آتا تھا. اب جو یہ انڈیا میں بہت زیادہ موربیڈیٹی مورٹیلٹی رپورٹ ہوئی تو دنیا میں ایک بہت بڑا خطرہ نظر آیا کہ یہ ایک زبردست پینڈیمک دوبارہ تو نہیں ہو جائے گا اور یہی مورٹیلٹی تو نہیں ہوگی جو کہ دسمبر 2019 سے لے کر مارچ اپریل 2021 تک دنیا بھر میں چلی تھی. تو ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ویریئنٹ ہے جس میں شارٹنیس آف بریتھ پرائمریلی نہیں ہوتی, یا اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتی ہیں, ہم کلینک کرتے ہیں, میرا سبجیکٹ پریونٹیو میڈیسن ہے, انفیکشس ڈیزیز بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لو گریڈ فیور کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں. اور آج کل بقرہ عید بھی ہے تو بقرہ عید میں گیسٹرو انٹرائٹس بہت ملتا ہے, لوگ بہت کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لو گریڈ فیور کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے ہلکے پھلکے ایبڈومینل پین کے ساتھ یا کریمپ کے ساتھ یا کولک کے ساتھ, اور کہتا ہے کہ آئی یوز ٹو پاس دی اسکول 3 to 5 times a day, اور 3-4 دن بعد وہ امپروو نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہی نزلہ کھانسی اس کو ہوتا ہے, آنکھیں لال ہوتی ہیں. ہم اس کے مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں CBC ہوتا ہے, CRP ہوتا ہے, LDH ہوتا ہے, فیریٹن ہوتا ہے, ڈی ڈائمر ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم اس کا COVID-19 کرواتے ہیں. اٹ مے بی دا ریپڈ کٹ اینٹیجن اور اٹ مے بی دا via PCR. تو ہم دیکھتے ہیں اس کا COVID-19 پازیٹیو آ جاتا ہے. تو یہ وہ ویریئنٹ ہے جس میں پیشنٹ جو ہے پرائمریلی کمپلین کرتا نہیں ہے نزلہ کھانسی کی, پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کا, کچھ اس کو اسٹول پاس ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ڈیلٹا ویریئنٹ اس طرح جو ہے وہ پیشنٹ کو پرائمریلی GIT سے اپسیٹ کرتا ہے اور سیکنڈریلی باقی آرگنز کو انوالو کرتا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے سیویرٹی کا,
फॉर्चुनेटली सिंस मैनी मंथ्स कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारी टाइप की वैक्सीन है, और जो कभी आप पूछेंगे तो बताएंगे कौन कौन से टाइप की वैक्सीन है, लेकिन हर लेवल पे दुनिया भर में, पाकिस्तान में, कराची में ये वैक्सीन सबको लग रही है, जिसका ये RNA वैक्सीन है, जिसका मकसद बॉडी में कोविड-19 की एंटीबॉडी को डेवलप करना है। तो इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड हो गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में भी कोरोना से मुतासर हुए, तो उनके अंदर नेचुरली भी एंटीबॉडी डेवलप हुई। ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम है, उनको साइलेंट कोविड-19 हुआ भी और होके वो चला भी गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हो गए। तो अब जिन लोगों को डेल्टा वेरिएंट मुतासर कर रहा है ना, उनके अंदर सीवियरिटी पे हम कमेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो कोमॉर्बिड के साथ हैं, जिनको अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, रीनल फेलियर का एलिमेंट है, या उनको COPD है, स्मोकर है, तो उनको ये चीज़ बहुत सीवियरिटी के साथ आती है, और उनके GIT के साथ साथ उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। एंड इफ़ द एज ऑफ पेशेंट इज लेस देन 35-40 ईयर्स, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर नहीं कर रही, और वो चुपचाप होकर 5-7 दिन में वो रिवर्ट भी आता है। बट आई वॉन्ट टू कंक्लूड कि डेल्टा वेरिएंट इस वक्त मौजूद है, और अभी कुछ दिनों में, 2-3 हफ्तों में आपको बताएगा टाइम कि कितना ज़्यादा जो होता है वो लोगों को मुतासर करता है। माय गॉड। और मैं कहना चाहूँ इस वक्त वो सारे हॉस्पिटल जो कोविड-19 में है, आपको जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, रश हो गया है। हाँ, पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा हो बहुत गया ज़्यादा है, रश जो हो कि अलार्म है कि वंस अगेन हमको वही केयर करनी पड़ेगी जो हमने लास्ट ईयर मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई में की थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और लोगों का जो इनकी जो भी आप कहें कि बिल्कुल भी SOPs पे ख्याल नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल नॉन सीरियस सा बिहेवियर हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है। और अभी जो लॉकडाउन होने का भी खदशा है वो इसी वजह से है कि लोग खुद इटसेल्फ जो है वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपकी स्पेशलिटी गायनाकोलॉजी है, एंड यूर गायनाकोलॉजिस्ट, UK में भी प्रैक्टिस करती रही हैं। सो बहुत सारी ख़वातीन आपसे भी सवाल करती हैं, मुझसे भी यही सवाल करती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हम लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है, और बहुत ज़रूरी भी है हमारे व्यूवर्स को ये बात बताना कि in pregnancy can we do the vaccination or not. And I have अभी मैंने पढ़ा था CDC की वेबसाइट पे कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं they are more likely to develop more severe symptoms, and बहुत ज़्यादा उनको जो है वो IUD का खदशा है, इंट्रायूट्राइन बर्थ का ख़तरा है, और दूसरा इसके अलावा उनका जो बेबी है वो प्रीमेच्योर हो सकता है। तो व्हाट वुड यू कमेंट ऑन दैट? क्या ये बात में कितनी सदाकत है? ऑब्वियसली बात है, CDC की वेबसाइट है, सदाकत तो है, पर फिर भी आप हमारे लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा से आगाह करें, अवेयर करें रिगार्डिंग दिस, कैन दे डू वैक्सीनेशन और नॉट? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस बात को क्लियर करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें सारी फीमेल्स, उनमें जो प्रेग्नेंट हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं, दे ऑलवेज कम, और उनका एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम वैक्सीन लगवा लें। तो एक बात बिल्कुल ही मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी वैक्सीन है जो कि हम कोविड के लिए लगवाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, वो सारी की सारी प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। प्रेगनेंसी में कोविड के सिम्टम्स बहुत डिफरेंट तरीके से ज़ाहिर होते हैं, और ये ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं जब आप आखिरी महीनों में होते हैं, 7th-8th मंथ प्रेगनेंसी के महीने में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको सांस में मुश्किल होती है। ओके डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था, काफी अच्छा है माशाल्लाह आपका प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है जी डॉक्टर साहबा। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं, जिनमें साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैंसिनो है, फाइज़र है, दे आर ऑल सेफ इन प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी में किसी भी ट्राइमेस्टर में, चाहे आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है, चाहे आपका बीच का टाइम है, 20 वीक है, या आप आखिर के टाइम पर हैं जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है हर वैक्सीन लगवाना। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिस तरह अगर हम अपने इनफर्टिलिटी पेशेंट्स देखते हैं, या वो औरतें। डॉक्टर साहबा, एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से फैयाज बात कर रहा हूँ। जी फयाज, जी मुझे ये पूछना था मैम कि अगर शुगर का मरीज है तो उसके लिए वैक्सीन की क्या शेड्यूल है? मतलब मैं गया था लगवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना दवाइयाँ खा के फिर आए। फिर मैं गया तो फिर शुगर जाहिर बात है वो लो होती है, तो इसके लिए मतलब आपकी उम्र क्या है? करना है? उम्र है तकरीबन 46। 46 ईयर एंड यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, ओके राइट। जी और कोई सवाल आपका? नहीं मैम। डॉक्टर साहब आप लोग कोई सवाल ऐड करना चाहेंगे? लेकिन मैं इस पर कमेंट कर दूँ, बहुत सारे ऐसे जो है इन्फॉर्मेशन लेटर इसमें कहते हैं डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, उसमें वैक्सीन या तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एब्सोल्युटली या रिलेटिवली। जैसे डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को बहुत अच्छा क्लियर किया, डॉक्टर फौजिया ने, कि वैक्सीन है तो बहुत सारी टाइप्स की, अगर मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि वैक्सीन की टाइप्स कौन सी हैं। भाई फयाज साहब, मैं आपसे कहूँ कि आपकी एज 45-48 ईयर्स है, आपको डायबिटीज़ है, आप कोशिश तो ये करें आपकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल्ड हो, शुगर लेवल आपका फास्टिंग हो, रैंडम हो, HbA1c हो, वो कंट्रोल ही रहे। और डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ में शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ भी है ना, तो आप वैक्सीन लगवाने के लिए चले जाइए, बिकॉज इससे आपकी किसी ऑर्गन को इफेक्ट नहीं होगा और आपका डायबिटीज़ का लेवल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मिसकॉन्सेप्ट हैं। और जितने भी CVCs हैं कराची में, पाकिस्तान में, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स, उसमें एक हेल्थ वर्कर ज़रूर मौजूद होता है आपको गाइड करने के लिए। तो डायबिटीज़ में आपको वैक्सीन ज़रूर ले लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं। यहाँ पर एक मैं बात क्लियर करना चाहूँगी कि उनको जो कहा गया कि उनकी लो शुगर लेवल है, तो उनको अपना ऑप्टिमम लेवल लेके जाना चाहिए। कभी कभी किसी भी इंजेक्शन के बाद कुछ लोग उनको थोड़ा सा फेंटिंग फीलिंग आती है, चक्कर आते हैं उनको, उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है, ह्यूमन फिनोमेना है। तो इनको चाहिए कि अपनी डायबिटीज कंट्रोल करके अपने शुगर लेवल हाइपो में लेकर ना जाएं। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ ना जाएं। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ ना जाएं, Okay. तो इनको वैक्सीन लग जाएगी। ओके डॉक्टर साहबा, थैंक यू, आपने बड़ा क्लियर अच्छा तरीके से बता दिया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे कोविड-19 पर, और उसके साथ साथ हम ये बात कर रहे थे कोविड-19 वैक्सीनेशन किस तरीके से करवानी चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में सेव है नहीं है, बाकी और जो कॉमोर्बिड्स होते हैं लाइक हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, या फिर आपकी बॉडी में जो भी पैथोलॉजीज चल रही हैं उसके साथ क्या हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या नहीं। हमारे साथ दो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, एक जो है जनरल फिजिशियन है, एक की स्पेशलिटी गायनोकोलॉजी है। हम ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहबा से ये पूछ रहे थे रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन मदर क्या करवा सकती हैं नहीं करवा सकती, या जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं नहीं करवा सकती। डॉक्टर साहबा ने हमें काफ़ी क्लियर किया चीज़ों में, पर और मजीद भी मैं आपसे सवालात करूँगी डॉक्टर साहबा रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन के लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, यानी जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं माएँ, उनका क्या होता है कि क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, या फिर अगर वो वैक्सीनेशन करवा लेती हैं जो खवातीन, उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी वो एंटीबॉडीज ट्रांसमिट हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। सो फार जो कि इस वक्त हमारे पास जो भी जो डेटा आया है, एविडेंस आया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें यही आया है कि ऑल दीज वैक्सीन्स आर परफेक्टली सेफ इन प्रेगनेंसी एंड इन ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी एविडेंस आया है कि जिन माओं को कभी कोविड हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों में इम्यूनिटी आ जाती है। ओके, कोविड वैक्सीन का इस वक्त डेटा क्लियर नहीं है कि वैक्सीन से बच्चों में इम्यूनिटी आती है कि नहीं आती, लेकिन इस वक्त जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या जिनको चाइल्ड बर्थ हुआ है या वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, इन सब में वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ बिल्कुल है। safe है। ओके, मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताती चलूँ, बहुत सारी खवातीन मुझसे भी पूछती हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या हम लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, हमारी प्रेगनेंसी चल रही है, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, चाहे आप मतलब जो है इनिशियल हो आपकी प्रेगनेंसी का, जो भी हो, आप आराम से वैक्सीन करवा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी फेयर। सो थैंक यू डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया इसको। कुछ और बताना इसमें एक मैं बात क्लियर कर, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर जब आपका 7 मंथ ख़त्म होता है, आप जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं, 7th, 8th एंड 9th मंथ में, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है और अगर आपको कोविड होता है,
اس میں سیویرٹی آف سمٹمس بہت زیادہ ہوتے ہیں پریگننٹ پیشنٹس میں، کیونکہ ایک تو بیبی کا بھی ویٹ ہوتا ہے، بیبی کا پریشر پڑتا ہے آپ کی چیسٹ پر، تو ان کو سانس لینے کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے نارمل لوگوں سے. اچھا. ان میں سمٹمس زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ میں سمٹمس زیادہ ہوں گے تو یہ آپ کے بچے کو افیکٹ کرتے ہیں. اور دو جو میجر افیکٹ اس وقت کلیئر ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنے ٹائم سے پہلے آ سکتا ہے، جس کو ہم لوگ پری ٹرم ڈلیوری کہتے ہیں. دوسرا، آپ کے بچے کے اندر IUD ہونے کے، اس کا مقصد ہے کہ بچے کے اندر مر جانے کے چانسز ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں. او مائی گاڈ. اوکے، بہت اچھا آپ نے یہ کلیئر کیا. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مدیحہ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں فلاح صاحب؟ الحمدللہ میں خیر سے. جی مدیحہ، کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میرا سوال یہ ہے، سسٹر جو ہے وہ ہے، وہ اس حالت میں ویکسین لگا سکتی ہے؟ اس سے Sorry, کوئی سائڈ افیکٹ اوکے. ان کی جو سسٹر ہیں شی از ایکسپیکٹنگ اینڈ شی نیڈس ٹو نو اباؤٹ دا ویکسینیشن کہ کیا وہ ویکسینیشن کروا سکتی ہیں. جی بالکل، آپ کو اس بارے میں آپ کو جواب دوں گی مدیحہ، پر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال کرنا چاہوں گی ریگارڈنگ دا اینیمیا، کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو مطلب پاکستان کے اندر وی آر انڈر ڈیولپنگ کنٹری، تو اویئرنیس نہیں ہے یا پھر ڈائٹ اچھی نہیں ہے، اینیمیا کا بہت شکار ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے اینیمیا ان جنرل، دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی اینیمیا ان پریگنینسی کی بھی. ہمارے یہاں اینیمیا بہت زیادہ کامن ہے. اگر ہم ڈیٹا پبلش کریں، ڈیٹا کو ہم کمپائل کریں تو جنرلی ہماری فیمیلز میں اینیمیا بہت زیادہ دکھتا ہے. اینیمیا ہوتا کیا ہے؟ کسی وجہ سے خون میں کمی ہو جانا، یہ اینیمیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری محسوس ہونا، سانس کا چڑھ جانا، چلتے ہوئے جو ہے بندے کو تھکاوٹ محسوس ہونا، انرجی لیول کا ڈاؤن ہونا، فیلنگ آف فٹیگ ہونا. تو یہ سمٹم ہیں. بہت سارے لوگ لڑکیاں آئے کہتی ہیں، لڑکیاں آئے کہتے ہیں 20-25 سال کی ایج ہے یا فیمیل کی پریگنینسی ہوتی ہے، بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کام کرنے ایسے نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہوتی. تو اینیمیا خون کا لیول ہیموگلوبن آف لیس دین 12 ان فیمیلز، لیس دین 14 ان فیمیلز، یہ ڈیفینیشن ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بھی فیمیلز آتی ہیں نا، چاہے اس کی ایج جو ہے 12 سال سے لے کر 40-45 سال تک ہو، ان کا HP لیول 7, 8, 9, 10 ملتا ہے. اٹ از اینیمیا. اور بہت ساری ریزنس میں ہوتی ہیں، جس میں کامنسٹ ہوتی ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا. کچھ خواتین جو ہوتی ہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی نہیں ہیں، کام کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوشو اکنامی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، کھانا اچھا نہیں کھانا، آئرن کی چیزوں کا استعمال نہ ہونا. تو اینیمیا بہت زیادہ کامن ہے. تو اس کے لیے تو میں کہوں گا کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آل دی انڈیویجولس ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دیئر نیوٹریشن. خوراک کا کون سا کمپوننٹ ہونا چاہیے، بریک فاسٹ کیسا ہونا چاہیے، لنچ کیسا ہونا چاہیے، ڈنر کیسا ہونا چاہیے، اور کون سی چیزیں ڈائٹ میں انکلوڈ ہونی چاہیے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی، میلز کی اور اسپیشلی فیمیلز کی. تو ہمیں بہت زیادہ سپلیمنٹ لکھنے پڑتے ہیں، جس میں آئرن کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں، ملٹی وائٹامنس ہوتے ہیں، آئرن پولی مالٹوز ہوتے ہیں، آئرن سکروز ہوتے ہیں، فرس سلفیٹس ہوتے ہیں. تو اینیمیا بہت کامنلی ہماری پاپولیشن میں دکھتا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا جنرلی اگر ہم ایک سروے کریں نا، تو 70 to 80% فیمیلز میں اور اباؤٹ 50% بچوں میں، میلز میں ہمیں اینیمیا دکھے گا. اس پہ بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. وائی وی آر گوئنگ فار دا ٹریٹمنٹ. ہم لوگوں کو اویئرنیس کیوں نہ دیں کہ آپ کو اینیمیا ڈیولپ ہی نہ ہو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پریونٹیو میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ لوگوں کو اپنا نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے ٹو پریونٹ فرام اینیمیا. اوکے. اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ڈے بائی ڈے یا تو مطلب بیبی ان سے بن رہا ہوتا ہے، ایک پورا ایک انڈیویجول بن رہا ہوتا ہے ایک عورت سے، تو اس کو تو زیادہ ضرورت ہے نیوٹریشن. اس کے بچے سے، ماں سے بچے میں ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے. میں اس پہ کمنٹ بھی کروں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پریگنینسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سیویرٹی کووڈ-19 کی. بیسیکلی پریگنینسی خود ایک ہائپر کوگولیبل فزیولوجیکل سینیریو ہے. اس میں PT, APTT, INR جو ہوتا ہے وہ سب بڑھ جاتا ہے. اور جو ہمارا جو کووڈ-19 ہے نا، وہ بھی جو لنگ کو متاثر کرتا ہے، اس میں ہم ایک ٹریٹمنٹ ایک کرواتے ہیں، انویسٹیگیشن ڈی ڈائمر ہوتا ہے، وہ بھی باڈی کے اندر ہائپر کوگولیبلٹی کو شو کرتا ہے، جس کے لیے ہم جو ہے کچھ ایسے انجیکشن اور ڈرگز یوز کرتے ہیں جو کہ اینٹی کوگولنٹ ہوتا ہے. تو پریگنینسی خود ایک فزیولوجیکلی ہائپر کوگولیبل اسٹیٹ ہے، جس کے اندر باڈی کے اندر خون کا جمنا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس پیشنٹ کو پریگنینسی میں اگر ہو جائے کووڈ-19 تو ہم HRCT بہت سارا کرواتے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ریڈیولوجی میں ایکس
एक्सरे तो होगा नहीं फीमेल का, लेकिन अगर CT करवाएंगे तो उसमें जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है ना, माइक्रो इम्बोला है, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बहुत होते ज़्यादा हैं होते हैं। एंड पेशेंट कम्स अप विद द मोर सिवियरिटी एज फार एज लंग डिजीज इज कंसर्न एसोसिएटेड विद COVID-19 इन प्रेगनेंसी। ओके ओके बहुत- ओके, बहुत इसको ध्यान बड़ा रखना है। सादा अल्फाज में मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को कि जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके खून के गाढ़ा होने के खदशात बढ़ जाते हैं, और इन COVID-19 आपका जो ब्लड होता है वो भी थिक हो जाता है। इसी वजह से हम एंटीकोगुलेंट्स यानी कि खून को पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो ख़वातीन, ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपका खून जो है वो गाढ़ा होने का खदशा होता है इन प्रेगनेंसी, और साथ में अगर खुदा न ख्वास्ता आप COVID-19 से भी एक्सपोज हो जाते हैं तो ये जो मोर लाइकली हो जाता है, ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी हवाले से मैं डॉक्टर साहब से भी इनके कमेंट्स ऐड करवा दूंगी रिगार्डिंग द कोगुलेशन। एंड डॉक्टर साहबा डॉक्टर साहब से सवाल करने से पहले हमें कॉलर ने पूछा था रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, जिसको हम बहुत एक्सप्लेन करके और बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं वैक्सीनेशन। फिर भी आप जरा उनके मैं यही बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो अभी हमारे एक कॉलर ने पूछा, तो दोनों डोजेज प्रेगनेंसी में सेफ हैं। ओके, चाहे वो उनकी अर्ली प्रेगनेंसी है या कोई भी ट्राइमेस्टर है, इट इज़ परफेक्टली सेफ। दूसरा, कुछ हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनमें ये सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें कोविड हुआ है, अब हम क्या करें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 80% ऑफ कोविड पेशेंट्स, उनको हम लोग घर पर ही ट्रीट करते हैं। Okay. उनको ज़्यादा सांस की तकलीफ जब तक नहीं होती तब तक हम उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करते। Okay. तो जो ट्रीटमेंट किसी नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए है, वही ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए है। ओके, ठीक है, राइट। अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अच्छा ऑक्सीजन डॉक्टर देते साहबा, हैं, यही चीज मुझे आपसे स्टेरॉइड्स, क्लियर करनी है रिगार्डिंग द एंटीबायोटिक्स के COVID-19 जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी दवाओं से लाइक उसको ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फिजिशियन हो गए या डॉक्टर्स हो गए, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी एंटीबायोटिक लिख देते हैं, और इन प्रेगनेंसी एंटीबायोटिक्स तो सेव नहीं होती हैं। तो इसके बारे में जरा हमारे व्यूवर्स को क्लियर एक्चुअली यू आर राइट कि कोविड एक वायरल है, राइट, उसमें एंटीबायोटिक्स का इतना रोल नहीं है। बट आई वॉज वर्किंग इन UK जस्ट रिसेंटली लास्ट मंथ, तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में ज़रूर हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। कभी कभी आपको सिर्फ वायरल नहीं होता, उसके साथ सुपर इम्पोज या एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। और यही कहा कि जो सिम्टम नॉर्मल कोविड में होते हैं, प्रेगनेंसी में वो डबल ट्रिपल होते हैं। तो उसके लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम सिंपल डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करवाते हैं अंटिल पेशेंट फील्स बेटर। वरना ट्रीटमेंट हमारी बिल्कुल सिम्टोमेटिक है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, जो कि जिस तरह नॉन प्रेग्नेंट को वैसे ही प्रेग्नेंट को। स्टीरॉयड डोजेस दिए जाते हैं, सेम डोज फॉर नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट पेशेंट्स। तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं है। Okay. बहुत दफ़ा हमें चेस्ट एक्सरे भी करवाना पड़ता है, Okay. दैट इज़ आल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके, हम बेबी को शील्ड कर देते हैं। अच्छा, तो तो X-ray ये के- पाकिस्तान के अंदर क्या ये फैसिलिटी है? बिल्कुल फैसिलिटी है। पाकिस्तान में कोविड की ट्रीटमेंट उतनी ही इफेक्टिव है जितनी दुनिया के किसी भी नहीं, country में आपने है। डॉक्टर साहबा बताया रिगार्डिंग शील्ड के बहुत सारे अवेलेबल है। डॉक्टर्स शील्ड इज अ वेरी सिंपल थिंग, उसमें Okay. हम बेबी को कवर कर देते हैं। Okay. और अगर कोई एक्सरे की कोई रे प्रेग्नेंट यूट्रस तक गई भी तो इट इज सेफ। ओके, उसमें जो रेज कितनी बार करवा सकते हैं हम एक्सरे? हाउ मेनी टाइम? जितनी दफा नीड होगी, अच्छा, जितनी दफा नीड होगी। नॉर्मली प्रेग्नेंट में या नॉन प्रेग्नेंट में कोविड पेशेंट्स में बहुत एक्सरेस कराने की हमें नीड नहीं होती है। Okay. लेकिन ट्रीटमेंट जो कि नॉन अच्छा प्रेग्नेंट डॉक्टर साहबा, एक आपसे एक और सवाल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हमने एक्सरे करवाया, ठीक है, फर्स्ट डे हम कोविड पेशेंट का हमने करवा दिया कि फिजियोलॉजी क्या चल रही है, पैथोलॉजी क्या है। बहुत सारे फिजिशियन होते हैं जो रिकरेंटली एक्सरे करवाते हैं। कितने टाइम के बाद आप एक्सरे करवा सकते हैं? लाइक आपने फर्स्ट डे एक्सरे करवाया, देन आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1 वीक का भी आपने 1 वीक के बाद रिपीट करना चाहिए या वेरी फर्स्ट डे आपने किया, वेरी सेकंड डे आपने कर दिया? देखिए, कोविड का जो कोर्स है दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप हर पेशेंट को एक जगह फिट नहीं कर सकते। जो भी ट्रीटमेंट होती है, चाहे उसमें स्टेरॉइड्स हों, चाहे उसमें इन्वेस्टिगेशंस हों, चाहे उसमें एंटीबायोटिक्स हों, वो एवरी इंडिविजुअल नीड्स एट डिफरेंट टाइमिंग्स। किसी पेशेंट को सिर्फ एक एक्सरे की नीड होती है, किसी को 2 से 3 से या उससे भी ज़्यादा की नीड होती है, डिपेंडिंग कि उनकी सिवियरिटी क्या है। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ एक एक्सरे करा सकते हैं या सिर्फ या 2 या 3। ठीक है, जितनी भी नीड होगी वी हैव टू
go for it. ओके, जितनी बार भी जरूरत जितनी पड़ेगी। बार डॉक्टर भी साहब need आप होगी। इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? कंप्लीट एग्रीमेंट। यूजुअली सब लोग जानते हैं प्रेगनेंसी में रेडियोलॉजी एक्सपोजर नहीं होता, शील्डिंग फिनोमेना शुड बी देयर, कि बच्चों को शील्ड कर दिया जाए, प्रेगनेंसी यूट्रो में जो बेबी है उसको शील्ड करें, बिकॉज लाइफ ऑफ मदर इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब ने कहा ना कि प्रोग्नोस्टिक कमेंट जो होता है रेडियोलॉजी भी होता है। एक आपका लंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में या जनरली कोविड-19 में, जिसको प्रिवेंट करना होता है। और फाइनली पेशेंट को मॉर्बिडिटी होती है या परमानेंट अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही होती है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट। दूसरा आपने एक बात कही कि प्रेगनेंसी में सारी एंटीबायोटिक नुकसानदेह होती हैं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसकी बेसिस को उसको ABCDX में डिवाइड किया गया है, और वो आपके फिजिशियन का कंसल्टेंट का रैशनल होता है कि वो कौन सी बायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक को कौन से ट्राइमेस्टर में लिखे। यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं लिखते, सेकंड थर्ड में बहुत सारी एंटीबायोटिक सेफ होती हैं, और हमें एक ID कंसल्टेंट या कोई ऐसे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। जैसे गायनी ऑफ प्रेगनेंसी है तो हम डॉक्टर गायनी ऑफ से मिलते हैं, साथ में किसी हम ID कंसल्टेंट को लूप में रखते हैं, बिकॉज पैनल उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, और उसमें ड्रग की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। और जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने कहा था कि कोविड पेशेंट्स में प्री मेच्योर डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें बहुत दफ़ा आइट्रोजेनिक डिलीवरी होती है, जी। जिसका मकसद ये है कि पेशेंट के सिम्टम्स अच्छे नहीं हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम प्री मेच्योरली भी डिलीवर करा देते हैं पेशेंट्स को, ताकि चेस्ट पर जो इनका प्रेग्नेंट पेशेंट का जो एक बोझ है वो कम हो जाए। ओके, जो पर एक- डॉक्टर साहब जो अगर हमने एक लोड होता प्रीमेच्योरली है। बेबी को डिलीवर करवा दिया तो उसमें भी तो आपका लाइक मंथ रिलेटेड होता होगा ना? 7 मंथ में Definitely। करवाया, 8 मंथ, आपने देखिए- 6 मंथ में तो नहीं करवाया डिलीवर? देखिए, इट डिपेंड्स व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ कोविड। Okay। जब आपको कोविड होता है उसमें हमारी प्रायोरिटी बेबी नहीं होता, माँ मदर होती है। बिल्कुल, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्लियर किया। एक ब्रेक ही जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कितनी सेव है, और ख़वातीन जो भी लाइक जिनको कोविड हुआ है या प्रेगनेंसी के अंदर हुआ है तो उनको ट्रीटमेंट कौन सा लेना चाहिए, एनीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, और साथ साथ में आप अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपके अंदर एक डर और खौफ होता है कि इन प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन सेव नहीं होती। हमें बहुत अच्छे से डॉक्टर फौजिया ने भी क्लियर किया, डॉक्टर ओवैस ने भी क्लियर किया रिगार्डिंग वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी। आप अगर कॉल करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी, आप कोई भी बात पूछना चाह रहे हैं तो वी आर हेयर टू आंसर यू। इसके साथ साथ डॉक्टर साहबा आप जो है वो मुझे बता रही थी लैक्टेशन के बारे में भी आपने बताया था कि इम्यूनिटी जो है बच्चे से माँ की अंदर मुंतकिल हो जाती है, तो बाकी ये मतलब कितनी सदाकत है, किसमें लोगों को किस तरीके से हम इस चीज़ से आमादा करें, ज़रा ये बताइएगा। थोड़ा सा मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे माइंड में ये होता है कि अगर हमें वैक्सीन लग गई देन वी आर 100% सेफ। इस तरह नहीं होता है, ठीक है। वैक्सीन दे आर हाईली इफेक्टिव, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी कोविड हो सकता है अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने मास्क नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की है, या आप ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं जिस तरह हॉस्पिटल्स में हैं जिसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कोविड पेशेंट्स के साथ, तो इन स्पाइट ऑफ वैक्सीन आपको फिर भी कोविड हो सकता है। फिर भी हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी कम उसकी होगी, सिवियरिटी मिनिमल होती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमने कहा कि बच्चे में भी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ 100% ट्रू कि बच्चे में इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे 18 ईयर्स या 16 ईयर्स से छोटे हैं उनमें या तो सिम्टम होते नहीं हैं, या होते हैं तो दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, उनमें ज़्यादा सिम्टम सिवियरिटी में नहीं आते हैं। Okay. तो ये बात भी गलत है कि बच्चों को तो हो ही नहीं सकता। वेक्टर हो बच्चों में सकता है ना बच्चा, अगर बच्चों में तभी भी हम हो सकता तालीमी है, इदारे बंद करते हैं। लेकिन उनमें एक तो सिवियरिटी कम होती है, लेकिन वो ट्रांसमिट ज़्यादा करते हैं बच्चे। अच्छा, ट्रांसफर ज़्यादा करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि एक तो लोग ये कहते हैं कि हमने अगर जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि वैक्सीन करवा ली अब हम सेव हैं, अब हम मास्क नहीं पहनना चाहते, और एक और सवाल कि जिन लोगों को एक बार कोविड हुआ उनको दोबारा हो सकता है
یا اگر 2 بار ہوا ہے تو کیا تیسری بار ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذرا کلیئر کریے گا کہ یہ سارے مارکیٹ میں مسکنسیپشن بہت سارے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے نا سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتا ہے. پہلی بات، جس کو کووڈ-19 ہوا اس کو دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ریکرنس رپورٹڈ ہے، ڈیٹا پبلشڈ ہے، ریکرنس تو ہوتا ہی ہے اور ہو جاتا ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کو تو ڈیزیز ہو گئی، لیکن شاید امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا سفر کرتے ہیں، ہم کتنا ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہے. تو پرائمری امپورٹنس یہ ہوتی ہے، لوگ جو ہے 30 ایئرس کی ایج میں کسی کو کووڈ-19 ہوا اس کو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 20 ایئرس آف لیس دین 20 ایج میں کووڈ ہوتا ہے، لیکن سمٹم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. وہ سائلنٹ کووڈ ہوتا ہے، ایک عام نزلہ انفلوئنزا کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے. لیکن دس بیبی یا بیبی بوائے یا لڑکا لڑکی جو بھی ہے اراؤنڈ 10 to 20 ایئرس آف ایج، کیا وہ ٹینڈنسی رکھتا ہے کووڈ کو ٹرانسفر کرنے کی؟ تو پرائمری رسپانسبلٹی از اف یو ہیو بین ڈائگنوز ایز اے کیس آف کووڈ-19، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کووڈ-19 ہو گیا ہے، آپ کا امیونٹی بہت زبردست ہے، پرابلی وہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرے گا، کوئی آؤٹ کم نیگیٹیولی نہیں ہوگا. لیکن آپ بہت سارے ان لوگوں کے لیے ایکسپوجر ہیں جو کہ رسک پہ ہیں. لیکن اب میرے ساتھ میرے پیرنٹس ہیں جن کی ایج زیادہ ہے اور جو امیونو کمپرومائز بھی ہیں. تو اگر ہم لوگ ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا وی آر دی انڈیویژل ہو آر مور پون ٹو ڈیولپ کووڈ-19. ہم سارا دن پیشنٹ کے ساتھ ہیں، کلینک کرتے ہیں، ہاسپٹل آنا جانا ہوتا ہے. ہمیں کووڈ-19 کسی سے بھی ہو گیا لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور کسی دوسرے کو ہم ڈیزیز ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. تو کووڈ ایک مرتبہ ہونے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اٹ ہیز بین ایویڈنٹ، اٹ ہیز بین پبلشڈ. اور نیکسٹ یہ ہے کووڈ-19 لگانے کے بعد دوبارہ ہوگا، ویکسین لگانے کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. کووڈ کے ملٹیپل ویریئنٹس بھی ہیں. ابھی ہم نے کہا تھا کہ الفا، بیٹا، گاما اور ڈیلٹا تو رپورٹڈ بھی ہیں. ناؤ اٹ از 4th ویو، دس از ریلیٹڈ ود دی ڈیلٹا. تو کووڈ-19 کا دوسرا ویریئنٹ آپ کو متاثر کرے گا. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ تقریباً 303 ویکسینس کے ٹرائل ہوئے. جسٹ وانٹ ٹو انفارم دی لسنرس کہ کووڈ کی ویکسین بنی، اس میں اس وقت 30 ویکسینس اویلیبل ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہیں دنیا بھر میں. ہمارے پاس بھی 12 سے 15 موجود ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی ویکسینز ہیں. تو ویکسین لگوانے کے بعد بھی 100% سیف کوئی بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دنیا سیکنڈ کرتی ہے کہ سیویرٹی آف ڈیزیز از لیس، کم ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ کی موربیڈیٹی مورٹیلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے. مورٹیلیٹی تقریباً نہیں ہوتی، موربیڈیٹی کم ہو جاتی ہے. تو ویکسین لگانے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یا کسی کو بھی دوبارہ کووڈ-19 نہیں ہوگا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ میجرمنٹس کریں، پریکاشنری ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، اور تمام پریکاشنری میجرمنٹ جو پچھلے 1.5 سال سے ہر جگہ چل رہے ہیں، وہ ہاتھ نہ ملائیں، لوگوں سے دور رہیں، گیدرنگس میں نہ جائیں، شادیوں میں بہت قریب شرکت نہ کریں. تو یہ سب وہی میجرمنٹ جو آج سے 1.5 سال پہلے کہے گئے تھے ابھی بھی ویلڈ ہے. لیکن کچھ چیزیں چینج ہوئیں. ویکسین آئی، پریگنینسی میں کنٹرا انڈیکیشن تھا، نہیں منع کیا گیا تھا. لیکٹیٹنگ مدر کو منع تھا. لیکن اب جو ڈیٹا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے نا، جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ پریگنینسی میں اور لیکٹیٹنگ مدرس میں اٹ از سیف. اٹ از سیف. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بتایا کہ اٹس سیف. I want to talk about the like research articles کہ کتنے ریسرچ آرٹیکلس ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں ریگارڈنگ دس. رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہوئے ہوں گے خواتین کے اوپر جو لیکٹیٹنگ مدر تھیں یا پریگننٹ وومن تھیں. تو ہم لوگ کبھی بھی بات کرتے ہیں تو ہم ود ایویڈنس ود ریسرچ آرٹیکل بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو بات کی ہے یہ 100% ہماری جو ہے وہ درست ہے. تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورس کو بتائے گا کہ یہ جو بھی ڈیٹا پبلش ہوا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہوتا ہے، فرسٹ آپ کے سیو ہیومن پر، ہیلدی ہیومن پر آپ کے ٹرائلس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پبلش ہوتا ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے نا ہوا میں باتیں کرتے ہیں. دیکھیے اس بات کو میں بہت ایک جو ہے آپ کو بہت جو کلیئرلی بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم لوگ سرچ کرتے ہیں وی جسٹ ٹائپ، سرچ انجن پہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ اینڈ وی جسٹ سی. اگر ہمیں کووڈ کے بارے میں کوئی بھی چیز دیکھنی ہے وی شوڈ گو آن دی ایویڈینس بیسڈ ویب سائٹ، جس میں اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ ہم لوگ جو ہیلتھ سسٹم فالو کرتے ہیں وی فالو دی ویسٹرن ورلڈ. اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کو فالو کرتے ہیں دین وی شوڈ گو آن دی رائل کالج آف آبسٹیٹیشن اینڈ گائنیکالوجسٹ اور امریکن کالج آف گائنیکالوجسٹ، یا اسی طرح کی جو ویسٹرن جن کے پاس ایک ایویڈینس بیس ریسرچ پروگرام چلتا ہے. اور اس میں بہت کلیئرلی کہا گیا ہے کہ دیز آل تھنگس آر سیف. کووڈ جب اسٹارٹ ہوا وی ڈڈ ناٹ ہیو ایویڈینس بٹ اٹ ہیز بین آلموسٹ 2 years ناؤ. اوکے. آہستہ آہستہ اب ہمارے پاس ایویڈینس آ رہا ہے کہ اس کی کتنی سیفٹی ہے،
क्या pregnancy सॉरी में- टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहिबा, एक सवाल बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो ये सवाल करते हैं कि कोई भी ड्रग मार्केट में जब अवेलेबल होती है तो उसके स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, जिसमें हम पहला ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उस पर करते हैं। तो कहते हैं कि भाई अभी तो वैक्सीनेशन मार्केट में नई नई आई थी और कैसे जो है हमने इसको देख लिया कि ये सेव है, ये तो 20 साल के बाद पता चलेगा। ये डॉक्टर साहब से भी मैं इस बारे में पूछूंगी, पर आप बताइएगा कि जो रिसर्च का टाइम पीरियड होता है वो ऑब्वियसली बातें बड़ा लंबा चलता है, इसके बारे में जरा हमारी व्यूअर्स देखिए, जब हमारे पास ये वैक्सीन स्टार्ट हुई थी हमारे अपने कंट्री में, तो शुरू में यही आया था कि आप लोग नहीं लगवा सकते इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर एविडेंस आया था कि आप नहीं लगवा सकते, रिकमेंडेड नहीं था। लेकिन जब से अब दोबारा ट्रायल आना स्टार्ट हुए हैं तो उसमें यही कहा गया है कि इसका कोई नुकसान देखने में नहीं आया है। ठीक है, मीन्स और ये- ऑब्वियसली बात है, प्रेगनेंसी ठीक तो है। 9 मंथ की होती है, उसी में आप और ऑब्जर्व उसमें कर लेते हैं, इस राइट? वक्त हमारे पास जो है वो WHO का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर आया है। यू कैन गो राइट डाउन कोविड सेफ्टी इन प्रेगनेंसी, Okay. उसमें आपको WHO का क्राइटेरिया आ जाएगा। Okay. उसमें यही आया है कि क्योंकि ये जो भी वैक्सीन हैं हमारे पास इस वक्त, एक वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की थी, उसका ये था कि शायद हम ना लगवाएं प्रेगनेंसी में, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अंडर 40 एनीवे। ओके ओके, डॉक्टर साहब इसके बारे में जरा बताइएगा, रिसर्च ट्रायल के बारे में। एज अ फार्माकोलॉजिस्ट मैं कमेंट करूं, ड्रग डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, दवा कैसे बनती है। बहुत छोटी सी मैं बात में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक ड्रग बनने के 4 फेजेस होते हैं, जी। जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। बिल्कुल। एक दवा को डेवलप होने में यूजुअली 8 to 10 ईयर्स लगते हैं। इट इज द फैक्ट। Yes. कोविड की 19 की वैक्सीन 12 महीने में कैसे डेवलप हो गई, इट इज द क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले दवा की जो इम्पोर्टेंट होती है ना, उसकी हम देखते हैं उसका सेफ्टी प्रोफाइल कैसा है। सेफ्टी प्रोफाइल में ये होता है कि आपके ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, लंग है और ब्रेन है। एक दवा को जब एनिमल स्टडी की जाती है जिसमें गिनी पिग्स होते हैं, रैट्स होते हैं, माइस होते हैं, इस पे दवा इस्तेमाल की जाती है और दवा की सेफ्टी प्रोफाइल की जाती है। उसमें हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, हिस्टोपैथोलॉजी, इसकी बेसिस पे ड्रग की सेफ्टी पे कमेंट करते हैं कि ड्रग के साइड इफेक्ट है नहीं। इसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 ट्रायल्स होते हैं। फेज 1 ट्रायल में बहुत छोटी सी पॉपुलेशन को हम लेते हैं, उसमें दवा को देख रहे होते हैं, उसकी एफिकेसी कमेंट करते हैं। फेज 2 में थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उस पर काम करते हैं। फेज 3 पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी सेफ्टी के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए देख रहे होते हैं। और फेज 4 जो होता है ना, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। एक दवा के एक्यूट साइड इफेक्ट्स होता है। एक्यूट ये होते हैं दवा लगने के 2 से 4 हफ्ते में रिपोर्ट हो जाए। डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था बंदे को वैक्सीन लगी, वो गिर गया, फेंटिंग हो गई, ये एक्यूट इमीडिएट साइड इफेक्ट है, मिनट्स में होता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया इंपॉर्टेंट है, एक फियर होता है, वेगोडाइलेशन होती है, ये एक्यूट साइड इफेक्ट्स हैं। अब वैक्सीन 2 किस्म की होती हैं। जो हमारी ये वाली वैक्सीन जो है ना, ये RNA वैक्सीन है। Okay, कोविड-19 जो है वो कोविड-19 वायरल RNA है, जैसे हमने कहा था SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और मर्स भी कहा था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस, उसको मर्स था एंड SARS-CoV-2 था। ये तो बहुत सालों पहले की बात है। अब इसमें वैक्सीन बनी कि RNA वैक्सीन थी। RNA क्या करता है, बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और बाज़ वक़्त RNA में चेंज टू DNA। DNA वो चीज़ है जो आपकी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन करवा सकता है। तो ये वैक्सीन बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। एक RNA टाइप की वैक्सीन है, दूसरी जो होती है वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है, जिसमें जिस वायरस को इस्तेमाल किया गया एज ए वेक्टर वो एडिनो वायरस था। Okay. इसके अलावा एक सब यूनिट वैक्सीन भी होती है और दूसरी प्रोटीन वैक्सीन भी होती है। इट विल बी मोर साइंटिफिक, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ बताने की। तो ये वैक्सीन जो होती है RNA वैक्सीन होती है, और RNA वैक्सीन जो होती है यूजुअली में प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही होती है और प्रोटीन एंटीबॉडीज को डेवलप कर रही होती है। Okay. तो इस तरह ये चीज़ बनती है। बिल्कुल, मतलब कहने का मकसद ये है कि दिस इज सेफ एंड किल्ड वैक्सीन्स हैं, लाइव वैक्सीन्स नहीं। Live vaccine। और इसमें एक जो होती है, डॉक्टर साहब ने कहा ना, किल्ड वैक्सीन्स भी होती हैं। RNA वैक्सीन्स हैं और एक इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, जो आम तौर पे इन 90% ऑफ केसेस बॉडी में कोई जेनेटिक चेंज यूजुअली नहीं करती हैं। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक होती है रिमोट इफेक्ट्स। इस वैक्सीन के क्या 8 या 10 साल के बाद क्या बॉडी में कोई चेंज होगा, या नहीं होगा, इस पर आज कमेंट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही रिगार्डिंग द कोविड वैक्सीनेशन, रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी। बहुत सारे मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन थे जो हमें क्लियर हुए आज। आई होप सो आपको बहुत सारे सवालात का जवाबात हमने प्रोवाइड कर दिया है। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।